Alright, assalamu alaikum everyone, those who have just joined. And I was waiting for other students to join us as well. But in a minute, I'll start the class. So, yesterday we had done with our topic 3, which was movement into out of cell. And yesterday we had done actually active transport and the similarities and differences between diffusion, osmosis, and active transport. And then we did some P1 question of topic 3. Uh, Now, today we will be starting our biological molecules topic. It's a very short topic, you could say that we do not have that much in that, but yes, this topic is important from P4 point of view as the food test for each carbohydrate, proteins, and lipids. They are important for P4 because sometimes there are questions in P4 regarding these tests. So definitely. All right, I think I should start. Those who will be joining, I will be adding them. Okay. Right. So when we talk about whenever we say biological molecules are basically those molecules, right? If you have to write down their definition, I hope that I have shared the screen. Have I shared the screen? I think I have not started sharing the screen. Okay. All right, I think now you can, all of you can see the screen now. Okay, as you know that whenever we say biological molecules, it means that those molecules or those chemicals, you could say that, which are synthesized by living organisms only. Okay, these basically these things are only synthesized by living organism, and they are important for them for their survival, right? And they are important for their survival and for different metabolic activities. ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं एंड यूजुअली these compounds, these biological molecules or these compounds have carbon in them. ठीक है, कार्बन इज अ मर्ज पार्ट ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स. ठीक है, जिस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सब में कार्बन होता है, तो इसी तरीके से हम जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हमारे जो टॉपिक में हैं, 4 मॉलिक्यूल्स, इन सब में कार्बन होता है. ठीक है, और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन तीनों में होता है, राइट? ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन is present in all of the 4 molecules that we are going to discuss them today, in present in all of the 4 biological molecules that are in syllabus. ठीक है, जितने भी हमारे सिलेबस में, अब वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, ये सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं. इनके फंक्शंस भी हम पढ़ेंगे, इनकी कॉम्पोजिशंस भी पढ़ेंगे, इनके मॉडल्स पढ़ेंगे. इनकी एग्जैक्ट केमिकल कॉम्पोजिशन हम नहीं पढ़ेंगे कि इनका केमिकल फार्मूला वगैरह क्या होता है, बट यस, यस इब्राहिम, you raise your hand, ma'am. Can you wait for some minute? I'm going to. Bete, I am Ibrahim. You may come, but obviously I cannot wait because we have to take this class. Na, you may come. Okay, you may join after coming from masjid. No problem for that. That are in syllabus, right? So the first we have to discuss basically 5 molecules. Number one is carbohydrates. Second is proteins. Third is lipids, and fourth we have to discuss is DNA. ठीक है, and each one we will be discussing their chemical composition, their chemical elements. Yes, 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 I am doing so, Ibrahim. ठीक है, I am okay. These molecules have carbon, hydrogen and oxygen. Carbon, hydrogen and oxygen is present in all of the molecules. We'll be discussing their chemical elements as well, and then we will be discussing how they are basically presented as a model.
राइट, इफ़ वी डू नॉट हैव टू मेंशन कि अगर इनकी एग्जैक्ट हम केमिकल कॉम्पोजिशन, इनके स्ट्रक्चर्स, हम केमिकल स्ट्रक्चर्स डिस्कस नहीं करेंगे, बट हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम इनको मॉडल के तौर पे इनका जो किस तरीके से इनको हम एक्सप्रेस करते हैं। फिर हम इनकी कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, फिर हम इनके थोड़े बहुत यूजेस पढ़ेंगे कि व्हाट आर देयर यूजेस, और फिर हम ये पढ़ेंगे कि कैसे लैब में इनको डिटेक्ट किया जाता है, वो कौन से टेस्ट हैं, और उन टेस्ट के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो क्या-क्या हैं। ठीक है? राइट? ओके। नेक्स्ट इज़, ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, हमारा वो फूड ग्रुप है, बेसिकली हमारा वो मॉलिक्यूल्स का ग्रुप है जो कि जिसके अंदर आपको अच्छी खासी वेरिएशंस मिलेंगी, और उसके अंदर दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे आर यूज्ड एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है? कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, तो are the primary source of energy in all living organisms। ठीक है? तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। कैसे ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हैं? ये ऐसे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हैं कि हमारी बॉडी को जब भी किसी भी एक्टिविटी के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है? अब वो एनर्जी, हमने कहा था, एरोबिक रेस्पिरेशन हो सकती है या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, ठीक है? दोनों सूरतों में जो एटीपी बन रहा होता है, एनर्जी बन रही होती है, उसके लिए जो पहली चीज़ इस्तेमाल होती है हमारे सेल में वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट की भी सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज इस्तेमाल हो रही होती है। अगर ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है और दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, और फिर इसके बाद सेल उनको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे यूज़ कर रहा होता है। इट ब्रेक्स डाउन इन इट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है? अब हमारे पास अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स का केमिकल एलिमेंट्स की बात करें, ठीक है? केमिकल एलिमेंट्स इसके अंदर अक्सर ये आपको, अच्छा, केमिकल एलिमेंट्स का जब कभी भी आपको लिखने को आए कि व्हाट आर द केमिकल एलिमेंट्स दैट आर फाउंड इन कार्बोहाइड्रेट्स, तो एक आपको एग्जामिनेशन टिप दूंगी, नेवर एवर राइट CHO, कभी भी उनका सिंबल नहीं लिखना है, बल्कि उनका पूरा नाम लिखना है। दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है? कभी भी सिंबल नहीं लिखना, उनका पूरा नाम लिखना है। अनटिल एंड अनलेस दे डू नॉट यू आस्क टू राइट द केमिकल सिंबल, यू हैव टू राइट द नेम्स। ठीक है? इसकी वजह से आपके मार्क्स जो है ना वो डिडक्ट हो जाते हैं। राइट? इसके बाद हम आ जाते हैं कि अब कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, तमाम कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर तीन ही एलिमेंट्स है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन इनकी ख़ास बात क्या है? एक ख़ास बात यह है कि रेशो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, इनकी ख़ास बात ये, क्योंकि लिपिड्स के अंदर भी सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होते हैं, लेकिन इसकी ख़ास बात क्या है कि रेशो जो है वो हमारा हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन जो कार्बोहाइड्रेट्स में होता है, इट इज़ 2:1। ठीक है? चाहे कोई सा भी कार्बोहाइड्रेट हो, राइट, उसके अंदर जो हाइड्रोजन होता है वो हमेशा डबल होते हैं, मॉलिक्यूल्स डबल एटम्स होते हैं एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है? अब इसकी फॉर एग्जांपल, इसकी जो, और फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, वो ग्लूकोज की दे रही हूँ। ठीक है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है? इसका फॉर्मूला जो है, आई होप कि यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट वगैरह कुछ है यहाँ पे। यस, ठीक है, मैं इसको सुपर स्क्रिप्ट कर दूँ, सबस्क्रिप्ट, राइट? ये इसका फॉर्मूला है, दैट का ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है, इट शोज दैट इट हैज 6 कार्बन एटम्स, 12 हाइड्रोजन एटम एंड 6 ऑक्सीजन एटम। आप इसमें देख सकते हैं कि रेशो जो है वो हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन वो 2:1 का है। ठीक है? अगर हाइड्रोजन जो है वो 12 है, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो दे आर 6, सो दिस शोज दैट 2:1 का रेशो है। और 2:1 का रेशो सिर्फ इन्हीं में ही होता है, लिपिड्स में नहीं होता। लिपिड्स के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो डिफरेंट होता है, वो कोई स्पेसिफिक नहीं है।
But what you need to remember is that the ratio of hydrogen to oxygen in carbohydrate, it is 2:1. ठीक है, तो इट्स 2:1, राइट। इसके बाद हम आते हैं अब ये तो सिंपल सी बात हो गई। अब एक चीज़ जो हमें आप लोगों को याद रखनी है इस टॉपिक में, वो है आपका स्मॉलेस्ट यूनिट। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स हों, प्रोटीन्स हों, लिपिड्स हों, ये सिंपलेस्ट फॉर्म भी है इनकी, यानी बिल्कुल स्मॉलेस्ट यूनिट भी है, और इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी है। तो चाहे वो डीएनए क्यों ना हो, हमारे पास जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, ये मिलके बने हैं स्मॉलेस्ट यूनिट से। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट भी इनको कह सकते हैं और इनका मोनोमर भी कह सकते हैं। मोनोमर मीन्स कि जो आपका, जिससे आपका जो मोनोमर्स मिलके आपका पॉलीमर बनाते हैं। जैसे कि एक वॉल है, वॉल इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, तो वो ब्रिक जो है वो उसका स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसका मोनोमर है। एक नेकलेस है, तो बीड्स उसमें लगी नहीं है, तो उसकी जो वन बीड है दैट इज द मोनोमर। बहुत सारी बीड्स मिलके एक पूरा नेकलेस बना रही हैं। तो सेम एज कार्बोहाइड्रेट्स हो, लिपिड्स हो, या प्रोटीन्स हो, या डीएनए हो, दे हैव देयर स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, उनका मोनोमर होता है। यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट्स का मोनोमर है दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, इसका जो मोनोमर है, कार्बोहाइड्रेट जिनसे मिलके बन रहे होते हैं, उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है ग्लूकोज, राइट, विच इज अ 6 कार्बन शुगर, राइट। अब कार्बोहाइड्रेट्स की भी 3 तरह की टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, दे आर ऑफ 3 टाइप्स, और वो 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं? नंबर 1 मोनोसेकेराइड, ठीक है। नंबर 2 डाइसेकेराइड। अभी मैं ये भी आपको बताऊंगी कि व्हाट डू वी मीन बाय मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड्स भी होते हैं, बट आपके सिलेबस में आपको इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है, मोनोसेकेराइड का मतलब क्या है? हैज़ ओनली वन यूनिट। जैसे एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है ना, एक ही सेल पे बना हुआ होता है, इसी तरीके से ये वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनके पास सिर्फ स्मॉलेस्ट यूनिट ही होता है। ठीक है, तो दैट इज, दे हैव ओनली वन यूनिट। ठीक है, हाउ कैन वी डिटर्मिन दैट व्हाट इज मोनोमर? ये हमें ऑलरेडी पता है, आपको खुद डिटर्मिन करने की ज़रूरत नहीं है। साइंटिस्ट ने आप लोगों के लिए ऑलरेडी इतना काम करके रखा हुआ है कि दे हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कार्बोहाइड्रेट्स हैव देयर मोनोमर विच आर नेम्ड एज 6 कार्बन शुगर है, दैट इज ग्लूकोज। इसके अलावा भी मोनोमर है जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। मोनोसेकेराइड्स है, मोनोसेकेराइड्स हमारी वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनके पास सिर्फ एक ही यूनिट होता है, यानी कि वो सबसे सिंपलेस्ट होता है, यानी सिर्फ एक ही यूनिट पे मरे हुए बने हुए होते हैं। और इसको हम जो शो करते हैं ना, वो हम एज अ हेक्सागोन के तौर पे शो करते हैं। अब यहाँ पे हेक्सागोन नहीं बना हुआ है, तो मैं मुझे फिर लेट मी ड्रॉ। ठीक है, ये लेट मी ड्रॉ विद दिस। ठीक है, 6 कार्बन शुगर है। ठीक है, ये एज अ हेक्सागोन के तौर पे इनका, अब ये एक ग्लूकोज को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। 6 कार्बन है, ये जो इसके कॉर्नर्स हैं, दे शोज दैट के एक एक कॉर्नर पे एक एक कार्बन है। तो ग्लूकोज इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ अ हेक्सागोन। ठीक है, तो समझ लें कि आप जो आपका मोनोसेकेराइड्स हैं उसके अंदर सिर्फ ये एक ही आपका यूनिट है, दैट इज ये आपका ग्लूकोज है। अब मोनोसेकेराइड्स में एग्जाम्पल्स भी हैं। अब सिर्फ ग्लूकोज खाली मोनोसेकेराइड नहीं होता है। ठीक है, ग्लूकोज इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं और वो कैसे, हाउ दे आर डिफरेंट। एक तो इसकी एग्जाम्पल है ग्लूकोज, एक है फ्रक्टोज, और एक है गैलेक्टोज, राइट। ठीक है, अब इसके अंदर, अच्छा, इन तीनों के पास दे दे हैव ओनली वन यूनिट, एंड दे आर मेड अप ऑफ, एंड दे आर 6 कार्बन शुगर्स। ठीक है, ये 6 कार्बन शुगर्स हैं, इनके पास एक ही एक यूनिट है। इवन इनका केमिकल फार्मूला भी सेम है। ऑल ऑफ देम हैव सेम केमिकल फार्मूला, दैट इज C6H12O6। सबका केमिकल फार्मूला भी सेम है, बट इनका नाम क्यों डिफरेंट है, और इवन इनका जो बिहेवियर है वो भी डिफरेंट होता है। उसकी वजह है इनकी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। जब आप लेटर इन ए लेवल्स आप डिस्कस, आप जब पढ़ेंगे ना इन डिटेल कि किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स बने हुए हैं,
ठीक है, वहाँ पर आप कार्बन, हाइड्रोजन, फंक्शनल ग्रुप के अरेंजमेंट्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा इन एटम्स की जो अरेंजमेंट है ना, सिर्फ उनकी अरेंजमेंट के डिफरेंस की वजह से इनके ये मैंने और इनको हम आइसोमर्स कहते हैं। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आइसोटोप्स, ठीक है, आइसोटोप्स के अंदर क्या होता था कि उनका एटॉमिक नंबर सेम होता था, दे हैड सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते थे, लेकिन फ़र्क क्या था, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थे, तो वो आइसोटोप्स थे। इस केस में आइसोमर्स जिन्हें हम कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं हमारे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो हमारे केमिकल कंपाउंड जिनका केमिकल फार्मूला सेम होता है, बस उनके एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, दैट्स वाई वो एक डिफरेंट उनका उनका बिहेवियर हो जाता है, उनको एक डिफरेंट नाम दिया जाता है। और इवन आप देखें कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज को अगर आप लें ना, ये सारी एडिबल शुगर्स हैं, ठीक है, और ये सिंपल शुगर भी कहलाती हैं, ये स्वीट होती हैं। जिस चीज़ को भी कार्बोहाइड्रेट्स के लिए एक वर्ड शुगर्स का भी यूज़ होता है। शुगर्स हमारे वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दैट आर स्वीट इन टेस्ट। तो ये जो हमारी सिंपल शुगर्स होती हैं, दे आर मोर स्वीटर इन टेस्ट, ठीक है, ये ज़्यादा स्वीटर होती हैं, right? Monosaccharides and disaccharides are sweeter in taste, while polysaccharides they are no more sweet, वो sweeter नहीं होती हैं। तो इन तीनों का ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है, ये तीनों हमारे मोनोमर्स हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के। अब इन्हीं से मिलके डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, ठीक है। तो हैं हम ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। अब डाइसैक्राइड में आ जाते हैं। तो डाइसैक्राइड के पास हैज़ टू यूनिट्स या मोनोमर्स, जिसको आप कहें बॉन्डेड विद ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के तौर पे बॉन्डेड होते हैं। दो यूनिट्स हैं, दोनों बॉन्ड हुए हुए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने कुछ ज़्यादा ही इसको छोटा कर दिया जाए, ठीक है। अब ये है आपका मोनोमर, राइट, जैसे कि ये अगर आप समझ लें कि ये मोनोसेकेराइड है, राइट, और इसी को ही मैं अगर आपको करूँ तो wait, ठीक है, ये एक और सही है, ये दो हैं और इनके दरमियान में है एक बॉन्ड, ठीक है। इस बॉन्ड से ये डाइसैकेराइड्स हो जाएंगे आपके, ठीक है। दिस इज मोनोसेकेराइड, सिंपल एक ही यूनिट है। डाइसैकेराइड में मीन्स दो हैं, ठीक है। इनको मैं इनका नाम भी लिख देती हूँ यहाँ पर, these are the disaccharides, ठीक है। अच्छा, डाइसैकेराइड्स की एग्जाम्पल क्या है? डाइसैकेराइड्स की एग्जाम्पल्स कोई मुझे बताएगा? व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डाइसैकेराइड इफ एनी वन ऑफ यू? इब्राहिम, व्हाट, वाई किस चीज़ के लिए कहा है आपने? मुझे डाइसैकेराइड्स के एग्जाम्पल्स बताइए, ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंट। Why they are sweeter? Because this is what they are. Acids sour होते हैं, alkalines जो alkalis होते हैं वो bitter होते हैं, they are sweeter, they are sweet in taste. This is what the nature has made them. जो simple sugars होती हैं, they are sweeter in taste, they are sweet in taste, ठीक है। Yes, maltose is right, disaccharide, maltose is one of the disaccharide, else इसके अलावा कोई और disaccharide please। ठीक है, वन ऑफ द डाइसैकेराइड इज सक्रोज, आपकी टेबल शुगर, जो शुगर आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, सुक्रोज, दैट इज अ डाइसैकेराइड। एंड लैक्टोज, नाउ लैक्टोज इज अ मिल्क शुगर, ठीक है। नो लाइपेज, मुज्तबा लाइपेज इज एन एंजाइम, इट इज प्रोटीन इन नेचर, राइट। लैक्टोज इज अ मिल्क शुगर, आपके मिल्क में जो शुगर होती है लैक्टोज, जो शुगर होती है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, दैट इज लैक्टोज, ठीक है। वो एक डाइसैकेराइड है एंड इट इज लेस स्वीटर। माल्टोज और सक्रोज का ज़्यादा स्वीटर होती है और लैक्टोज कम होती है। अच्छा, अब एक चीज़ और याद रखनी है, डाइसैकेराइड्स दो, अच्छा इनके अंदर दो यूनिट्स हैं, तो इसका मतलब है 12, टोटल 12 कार्बन आइटम्स होंगे। इन सब तीनों का फॉर्मूला सेम है, केमिकल फार्मूला, बट कार्बन अरेंजमेंट और फंक्शनल ग्रुप के अरेंजमेंट की वजह से इनका बिहेवियर भी डिफरेंट है, इनकी स्वीटनेस भी डिफरेंट है, इनके नाम भी डिफरेंट है, ठीक है। सक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज हैव सेम केमिकल फार्मूला, लेकिन लैक्टोज इतनी स्वीटर नहीं होती। दूध अगर आप ऐसे ही पिए तो आपको फीका फीका सा लगेगा, मगर अगर आप सक्रोज लें, जो घर में आपकी शुगर है, यू विल फाइंड इट मोर
स्वीटर, माल्टोस लें, माल्टोस भी स्वीटर होती है मगर उसका एक डिफरेंट टेस्ट होता है। माल्टोस आपको एक थोड़ा अच्छा, माल्टोस जो होती है आप वो आपको मिलेगी ब्राउन शुगर के अंदर। जो आपकी ब्राउन शुगर होती है, इट हैज़ माल्टोस इन इट। देखिए, मोनोसैकेराइड्स अगर हम बात कर रहे हैं मोनोमर्स और पॉलीमर्स की, तो मोनोमर्स आर जस्ट लाइक द स्मॉलेस्ट यूनिट। एक तस्बीह है, तस्बीह के अंदर आप देखते हैं बहुत सारी बीड्स हैं, तो तस्बीह इज मेड अप ऑफ दैट बीड्स। तो वो एक बीड जो है एक्चुअली इसका मोनोमर है, सिंगल यूनिट है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट पॉलीमर्स, तो पॉलीमर्स जो होते हैं वो मोनोमर्स से मिलके बनते हैं। ठीक है, अब आपकी वॉल है, आपकी वॉल एक वन, आपने वॉल ऐसा नहीं हुआ कि आपने कहीं से उठाई डायरेक्ट ऐसी लगा दी, वो वन पीस में नहीं, उसके स्मॉल यूनिट्स हैं। उसके स्मॉल यूनिट्स क्या है, ब्रिक्स हैं। तो सेम एज जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जस्ट लाइक स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, इनके छोटे छोटे स्मॉलर यूनिट्स हैं। और वो जो इनके स्मॉलर यूनिट्स हैं, दे बेसिकली हेल्प इट टू मेक अ बिगर पॉलीमर। ठीक है, अब हम, ये कार्बोहाइड्रेट है तो इसके स्मॉल मोनोमर्स जो हैं वो ग्लूकोज होता है, या फ्रक्टोज या गैलेक्टोज हो सकता है। ठीक है, और अगर प्रोटीन का होगा तो हम प्रोटीन के मोनोमर्स पढ़ेंगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे। तो डाइसैकेराइड के पास दो मोनोमर्स होते हैं जो कि बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, और इसकी एग्जांपल्स है माल्टोज, सक्रोज एंड लैक्टोज। वाई ऑक्सीजन 2:1, ये कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर रेशो है। ये कार्बोहाइड्रेट्स का स्पेशल रेशो है कि इसके अंदर हाइड्रोजन डबल होते हैं हमेशा, ऑक्सीजन एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन उसका वन पार्ट होता है। ठीक है, अब हम आते हैं पॉलीसेक्राइड्स के ऊपर। ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स हैज मोर देन 10 monomers bonded together. ठीक है, yes Ibrahim, you have raised hand, please ask the question. Since you have raised hand, आप लोग जब रेज हैंड करते हैं तो फिर या तो माइक पे बोला कीजिए, ठीक है, और अदरवाइज आप लोग बगैर रेज हैंड किए हुए ऐसे ही लिख दीजिए, रेशियो ऑफ C6H12O6। अच्छा, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, इसमें अगर आप देखें कार्बन को हटा दें आप, ठीक है, इसमें आप देखें कि हाइड्रोजन डबल है ऑक्सीजन से। ठीक है, तो ये तमाम कार्बोहाइड्रेट्स जो होंगे ना, अगर मैं आपको यहाँ पे, आप आज जाके लिस्ट ढूंढिएगा और तमाम डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्मूला देखिएगा, तमाम डिफरेंट, तो आपको पता चलेगा कि हर कार्बोहाइड्रेट का जो भी केमिकल फॉर्मूला है उसमें हाइड्रोजन, हमेशा हाइड्रोजन एटम्स आर डबल देन ऑक्सीजन। ठीक है, तो इट्स लाइक दैट। अब पॉलीसेक्राइड्स आ रहे हैं, पॉलीसेक्राइड्स के मोर देन, अच्छा कुछ हमारे ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं विच हैज़ लेस देन 10 मोनोमर्स। जिनके लेस देन 10 मोनोमर्स होते हैं, आप लोग प्लीज़ अपनी क्वेरीज को जो है ना मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं देखती जाऊंगी और उसको आंसर करती जाऊंगी। ठीक है, बोथ। वैसे हु इज एज डार्क बासिस, इज दिस यू अब्दुल अहद? ठीक है, तो अब जो ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं वो, अच्छा, जो कार्बोहाइड्रेट्स जिनके अंदर मोनोमर 10 से कम होते हैं वो ओलिगोसेक्राइड्स कहलाते हैं, और जिनके 10 से ज़्यादा होते हैं वो पॉलीसेक्राइड्स कहलाते हैं। सेक्राइड बेसिकली शुगर को कहते हैं, स्वीट शुगर को कहते हैं, लेकिन ये जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं दे आर नेवर स्वीट, बाय द वे। ठीक है, इसकी जो आपके पास एग्जांपल्स हैं आपके उसमें, वन इज सेलुलोज, सेकंड इज स्टार्च, एंड थर्ड इज ग्लाइकोजन। ठीक है, ये तीन इसकी एग्जाम्पल्स हैं और इन तीनों को पता होना चाहिए कि तीनों किस किस्म की हैं। ठीक है, अब हम अगर बात करें, अब इसके अंदर मैंने दो का बना के दिखा दिया। ठीक है, अब इसी तरीके से बहुत एक लंबी सी चेन बन जाए आपकी, लंबी सी, बहुत सारे इस किस्म के जो आपके मोनोमर्स हैं ये आ जाए। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे करूँ, ठीक है, ये तो चार बन गए। वेट, अब मैं एक काम करती हूँ, अब इसी तरीके के मज़ीद और यहाँ पर आ जाएँ, राइट, एक लंबी सी बड़ी सी चेन बन जाए और ये सारे एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हों। ठीक है, तो ये बनाएंगे एक पॉलीसेक्राइड, राइट। अब पॉलीसेक्राइड्स जो होंगे वो ज़रूरी नहीं है कि पॉलीसेक्राइड्स आपके जैसे कि ये आपस में बॉन्डेड होंगे, राइट, दे विल बी बॉन्डेड विद ईच अदर, ये सारे एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसाइड बॉन्ड,
होता है इनके अंदर, ये एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है। अब ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, कैन अ क्वेश्चन कम टू ड्रॉ दीज इन P2, नहीं, ऐसा नहीं होता यूजुअली। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स को यूजुअली हम ये हेक्सागोन के साथ शो कर रहे होते हैं। P1 में कभी-कभी क्वेश्चन आया है इस किस्म का कि उन्होंने इस तरीके की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दी है, तो आप आइडेंटिफ़ाई कर सकें कि अगर ये मैंने ड्रॉ किया है तो यकीनन ये कार्बोहाइड्रेट्स होगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो मोनोमर है वो एक हेक्सागोन है। हेक्सागोन बेसिकली ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को शो कर रहा है। ठीक है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जब कभी भी हम शो करते हैं तो ऐसा है। ठीक है, अब अगर लेट्स से कि अब ज़रूरी नहीं होता कि ये पॉलीसेक्राइड सिंपल लीनियर चेन के तौर पे मौजूद हो। ये भी हो सकता है कि ये पॉलीसेक्राइड जो हैं वो लेयर्स की फॉर्म में भी हों। ठीक है, यानी कि एक 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 सेम यही लेयर है आपकी। अब मैं इसको अच्छा, ये एक साथ सारा सेलेक्ट नहीं हो रहा है, राइट? एक मिनट, आई ट्राई कि इसको एक साथ अगर हम ओके, एक मिनट, अगर मैं ओके, ये तो ठीक है, ये सिर्फ एक ही चीज़ आ रही है इसके अंदर, ऑलराइट। ठीक है, अगर ये सारे, ये भी हो सकता है कि ये लेयरिंग फॉर्म में हो, यानी कि एक और लेयर जो है ऐसे, ठीक है, मौजूद हो। नहीं, ये तो मैंने, यस दीज आर लेस देन 10, मुझसे इतने ज़्यादा बन नहीं रहे थे, दैट्स व्हाई आई डिड दैट। सो ठीक है, ये आप देखें ना इसको, दीज आर लेस देन, ये ओलिगोसेक्राइड्स आप कह सकते हैं, लेकिन ये पॉलीसेक्राइड, अब ये देखिए, अब ये लेस देन 10 से अब ये 10 से ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, द सैक्राइड्स विच आर लेस देन 10 आर नोन एज ओलिगोसैक्राइड। मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, जो कि 2 से ज़्यादा हो और लेस देन 10 हो, दे आर कॉल्ड ओलिगोसैक्राइड। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप देखें, ये मैंने सर्कल बन गया है, राइट? अब ये भी हो सकता है कि ये पॉलीसेक्राइड्स हों, ये आपस में सारे बॉन्डेड हैं। ये भी हो सकता है कि ये इस तरीके की पूरी लेयर बनी हुई हो और ये लेयर्स भी आपस में इस तरीके से बॉन्डेड हुई है। ठीक है, ऐसे बॉन्डेड हो या ये कॉइल हो जाए। अब ये देखते, अब ये वाली जो ये जो स्ट्रक्चर है ना इस किस्म का, ये बेसिकली हमारे पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। जैसे सेलुलोज है, सेलुलोज एक बहुत टफ मटेरियल होता है और उसकी वजह ये है कि इस तरीके की बहुत सारी ग्लूकोज आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं और चेन्स की फॉर्म में होते हैं और लेयर्स होती हैं, वो सारी लेयर एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होती हैं। अब सोचिए, अगर मैं ऐसी ही एक और अगर मैं लेयर बना दूं, ठीक है, बिल्कुल एक ऐसा ही लेयर में अगर इसके अंदर बना दूँ, तो कितना सारा जो है वो हमारे पूरी थिक लेयर हो जाएगी और बहुत टफ हो जाएगी। अगर हम स्टार्च की बात करें तो स्टार्च में ऐसे क्या होता है कि ये ऐसी लेयर्स होती हैं और वो कॉइल हुई भी होती हैं, वो एक बिल्कुल सिलेंडर बना देता है कॉइल होकर के। मतलब ये अगर एक सिलेंडर की फॉर्म है तो यहाँ पे ये तो सर्कल बन रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे, ऐसे हैं, ओके, ठीक है, ये अगर ऐसे बना रहे हैं हम इसको, अब नहीं हो रहा है, ओके ठीक है, ये आपका सिलेंडर की फॉर्म में बन जाएगा, राइट? तो वो स्टार्च की शेप होती है, यानी ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, बहुत सारे ग्लूकोज हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ब्रांच फॉर्म में भी हैं, लेयर्स फॉर्म में भी हैं। तो दिस वे इस तरीके से हमारे पॉलीसेक्राइड सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन बन रहे होते हैं। कैन यू शो एनी एग्जाम्पल? यस आई कैन शो, मैं आपको गूगल करके आई कैन शो यू द एग्जाम्पल कि कैसे जो है वो हमारे स्टार्च, स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च, लेकिन मुझे स्क्रीन को दोबारा, एक स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। ठीक है, आई एम सर्चिंग इट कि आपको थोड़ा सा पता चल जाए। चलिए, ये एक अच्छी पिक्चर है जिसके थ्रू, लेकिन ये इतनी बड़ी नहीं है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, वेट।
चीज़ पेस्ट हो रही है, वहाँ से कॉपी नहीं हो रही है। ये देखिए, अगर आप इसमें स्ट्रक्चर देखें, अ, ये देखिए इसमें स्ट्रक्चर क्या है, मोनोमर और मोनोसेक्राइड एक ही बात है। मोनोसेक्राइड वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनके पास सिर्फ एक ही मोनोमर है। इफ यू हैव टू डिफाइन मोनोसेक्राइड, then monosaccharides are those carbohydrates that have only one monomer. Disaccharides are those carbohydrates that have two monomers. Oligosaccharides have less than 10 monomers, and polysaccharides are those carbohydrates that have 10 or more monomers. अगर आप ये देखें इनको, तो इनका जो शेप होता है, ठीक है, तो वो इस तरीके का है। यानी ये आपके ये मोनोसेक्राइड्स हैं जो आपस में जॉइन हैं, और इसके बाद ये जो लेयर्स हैं ये आपस में कनेक्टेड है। ये स्टार्च का शेप है, ठीक है, सेलुलोज का शेप है, राइट। स्टार्च जो है वो हमारा कॉइल हुआ हुआ है, यानी कि इस तरीके से ये आपस में इनकी बॉन्डिंग से इनका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर हम आ जाए, एक और हमारा होता है स्टार्च के अंदर बेसिकली दो टाइप की चेन्स होती हैं। अब स्टार्च इस तरीके का ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन आपने आपके जो मोनोमर्स हैं वो इस तरीके से ब्रांच फॉर्म में अरेंज हैं। तो दिस इज हाउ दीज मोनोमर्स आर बीइंग अरेंज। और ये देखिए यहाँ पे इन्होंने आपको इसका डायग्राम थोड़ा सा शो किया हुआ है कि इस तरीके से होता है कि किसी में ब्रांचेस नहीं होती हैं, किसी में ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। बॉन्ड्स इनके अंदर 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, बीटा ग्लूकोज वगैरह, ठीक है। ये इस वक्त ये आपको इतना जानना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इस वक्त आपको ये बस पता होना चाहिए कि इनका जो शेप होता है वो इट्स ऐसे हो सकते हैं पॉलीसेक्राइड्स। जितना ज़्यादा आपस में इनकी चेन्स बॉन्डेड होंगी उतना ही वो टफ पॉलीसेक्राइड्स होगा, ठीक है। इसी वजह से जो सेलुलोज होता है उसको, उसकी जो ब्रेकिंग होती है वो आसान नहीं होती है, क्योंकि ये इतनी लेयर्स होती हैं जो आपस में बॉन्डेड होती हैं, ठीक है। तो ये तो आ गया आपके डिफरेंट टाइप ऑफ आपके मोनोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स, ठीक है। अ, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम आते हैं, हमने कुछ नाम भी पढ़ लिए, ये नाम आपको याद होने चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन में क्या फ़र्क है। एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, वो पता होनी चाहिए कि सेलुलोज, स्टार्च और इनका फंक्शन बेसिकली आपको पता होना चाहिए, राइट। सेलुलोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। कैन एनीवन प्लीज लेट मी नो वेयर आई कैन गो बैक, दिस वन। अभी हम प्लीज़ कंटिन्यू करते हैं। आज मुझे ये चैप्टर ख़त्म करना था, लेकिन मुझे लगता है मैं कार्बोहाइड्रेट्स भी ख़त्म नहीं कर सकूँगी, तो इट वुड बी टू लॉन्ग। हमारे पास बहुत सारे चैप्टर हैं, राइट। आप लोगों की जो इंडिविजुअल क्वेरीज होती है ना, वो आप मुझे पर्सनल मैसेज में भेज दिया कीजिए, ठीक है, ताकि फिर मैं आई विल बी आंसरिंग यू इन डिटेल, राइट। तो सेलुलोज में आपके पास सेलुलोज इज अ पॉलीसेक्राइड, और बेसिकली सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है। इनका फंक्शन क्या है, सेल वॉल्स इनसे बनती हैं, और ये सिर्फ प्लांट के अंदर होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ प्लांट्स में होते हैं, एनिमल्स में सेलुलोज नहीं बनता, ना पाया जाता है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, प्लांट्स में बनता है सेलुलोज, वहीं पर ही मौजूद होता है। एनिमल्स में नहीं बनता, ना मौजूद होता है, और ना एनिमल्स इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्च की बात करें तो स्टार्च इज बेसिकली इज द storage form of carbohydrates in plants. प्लांट्स अपने पास कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, स्टार्च की फॉर्म में, जी, रूट्स में करते हैं। और स्टार्च एनिमल्स में बनता नहीं है, इट्स नेवर फॉर्म्ड इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर स्टार्च नहीं बनता, यानी अगर एनिमल्स के पास एक्स्ट्रा ग्लूकोज मौजूद है तो वो स्टोरेज फॉर्म जो होगी वो स्टार्च नहीं होती है, वो कुछ और होती है। प्लांट्स अपने पास एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो फोटोसिंथेसिस से बन रहा होता है उसको स्टोर करके रखते हैं स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। और ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर बनता है, इट इज़ ओनली फॉर्म्ड इन प्लांट्स, एनिमल्स में बनता नहीं है। हाँ, हम कंज्यूम जब करते हैं प्लांट बेस्ड फूड है, जैसे राइस, पोटैटोज वगैरह अगर हम खाएं, तो स्टार्च होता है विच इज़ डाइजेस्टेड इनटू ग्लूकोज, वो डाइजेस्ट हो जाता है ग्लूकोज में, और हमारी बॉडी जो है वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करती है, स्टार्च को एब्जॉर्ब नहीं कर रही होती है। नाउ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स,
ठीक है। एनिमल्स के अंदर स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, वो ग्लाइकोजन है। और मैं एनिमल्स की बात कर रही हूँ, एडवांस एनिमल्स, कॉम्प्लेक्स एनिमल लाइक ह्यूमन बीइंग, लाइक मैमल्स वगैरह। ठीक है, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टोर जो होते हैं वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है इन एनिमल्स। तो ये बात याद रखनी है कि एनिमल्स में कार्बोहाइड्रेट किस तरह स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। प्लांट्स में स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में, और सेलुलोज से सेल वॉल बनती है। ये 3 पॉलीसेकेराइड्स हैं जिनके फंक्शन आपको पता होने चाहिए। ओके। और फिर हम नेक्स्ट आते हैं इनके लैब टेस्ट की तरफ। ठीक है, कि अगर हमें फूड टेस्ट करना हो, अगर हमें टेस्ट करना हो कि किसी भी चीज़ में अगर स्टार्च मौजूद है या शुगर्स मौजूद हैं, तो हम उसको कैसे टेस्ट करेंगे और उसका हमारा प्रोटोकॉल क्या है। ठीक है, तो वो है हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट्स फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। और वो कौन-कौन से हैं? 2 टेस्ट हैं हमारे पास। Why glycogen and starch are suitable as storage materials in cell? अच्छा, a very good question. Why glycogen and starch are suitable as storage material in cells? Because they are insoluble in water. एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो मैंने ऊपर मेंशन नहीं की, इस क्वेश्चन से मुझे याद आ गया। मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड, दे बोथ आर soluble in water। ठीक है, ये दोनों जो होते हैं दे आर soluble। ठीक है, वाटर के अंदर ये सॉलेबल हो जाते हैं। एंड पॉलीसेक्राइड्स दे आर इनसॉलेबल। अब आप कल हमने जो चैप्टर पढ़ा था, हमने कहा था कि अगर किसी सोल्यूशन में बहुत, अगर किसी लिक्विड में बहुत सारा सॉल्यूट होगा तो उसका वाटर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, अगर डिसॉल्व हुआ होगा तो उसका वाटर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, और फिर दूसरे सेल से उस सेल में पानी आना शुरू हो जाएगा। यानी प्लांट के अंदर अगर जो फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बन रहा है, अगर प्लांट उसको स्टार्च में कन्वर्ट ना करे, तो प्लांट के उस सेल के अंदर बहुत सारा ग्लूकोज हो जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट के सेल के अंदर जो है बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड ग्लूकोज सोल्यूशन बन जाएगा, जिसकी वजह से उसका जो आपका वाटर पोटेंशियल है दैट विल ड्रॉप। तो जो एडजेसेंट सेल्स हैं दे विल स्टार्ट टू रिलीज वाटर बाय ऑस्मोसिस, और वो वाटर उस प्लांट सेल के अंदर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाटर पोटेंशियल की वजह से जो डिस्टर्बेंस हो रही है ना, ये जो इन आपकी जो सॉलेबल शुगर्स होती हैं ये क्रिएट करती हैं। तो हमारी बॉडी में चाहे हम एनिमल्स हों या प्लांट्स हों, इन ऑर्डर टू नॉट टू डिस्टर्ब द वाटर पोटेंशियल ऑफ द सेल्स, जैसे ही एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको स्टोरेज फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि स्टोरेज फॉर्म होती है इनसॉलेबल। चाहे स्टार्च हो या ग्लाइकोजन हो, दोनों इनसॉलेबल फॉर्म्स हैं, जिससे सेल का वाटर पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे ना वाटर पोटेंशियल ड्रॉप होता है ना वाटर पोटेंशियल बढ़ता है। ठीक है, तो दिस वे आपके सेल का वाटर पोटेंशियल भी बिल्कुल मेंटेन रहता है जो होना चाहिए, ताकि एडजेसेंट सेल से अंदर मजीद पानी ना आए, और प्लस ये होता है कि आपने उसको स्टोर भी कर लिया है। तो आई होप मैंने इस वाली बात को आंसर कर दिया है। मैं आई एम नॉट अंडरस्टूड द अदर्स आर ऑल्सो पॉली सेम। व्हाट डू यू मीन अब्दुल अहद, ये वाली बात मैं आपकी समझी नहीं। इब्राहिम देखिए, क्वेश्चन ये है कि इनको स्टोरेज फॉर्म में कन्वर्ट करना क्यों ज़रूरी है, वाई दे आर इम्पॉर्टेंट। भाई आपके सेल को क्या ज़रूरत पड़ी है, जब उसको ग्लूकोज मिल गया तो उसको ग्लूकोज की फॉर्म में रखे, क्योंकि आपके रेस्पिरेशन में तो ग्लूकोज की फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है ना। वाई इट इज़ कन्वर्टिंग, वाई इट इज़ स्पेंडिंग एनर्जी टू कन्वर्ट इट फर्स्ट इनटू स्टार्च इन प्लांट्स और ग्लाइकोजन इन एनिमल्स? बिकॉज ये जो इनसॉलेबल आपके, क्योंकि जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो इनसॉलेबल इन वाटर होते हैं, और वो प्लांट का जो सेल के अंदर का वाटर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं करते, कम नहीं करते, क्योंकि इसकी वजह से आपके सेल के अंदर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन नहीं बन रहा होता, वो सॉलेबल ही नहीं है, तो वाटर पोटेंशियल सेम रहता है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहती है। अगर खाली ग्लूकोज ही रहेगा सेल के अंदर, तो उससे तो आपके सेल के अंदर बहुत कंसनट्रेटेड ग्लूकोज सोल्यूशन बन जाएगा, जिससे आपके सेल के अंदर का वाटर पोटेंशियल बहुत कम हो जाएगा, कि उसके बराबर की जो सेल्स होंगे, एडजेसेंट सेल्स होंगे, वो वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू उसमें भेजना शुरू कर देंगे। इसलिए ठीक है, तो ये वाली बात है। तो दैट्स व्हाई अ सेल हैज टू कन्वर्ट द एक्स्ट्रा शुगर्स इनटू एन इनसॉलेबल पॉलीसेक्राइड फॉर्म, स्टोरेज फॉर्म में। अब इसकी एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, ये तो थी, अगर मैं आपको आम जिंदगी के एग्जांपल दे दूं कि आप घर में, लेट्स से कि अगर आपके पास टोटल अमाउंट
4-5 मिलियन रुपीज़ है, अगर आपकी सेविंग्स है 4 to 5 मिलियन रुपीज़ है, तो क्या आप वो सारे का सारा कैश अपने घर में रखेंगे या बैंक में जमा करा देंगे? ऑब्वियसली आप वो सारा कैश घर में नहीं रखेंगे, वो बैंक में एज अ स्टोरेज फॉर्म रखेंगे, क्योंकि घर में रखना इट्स नॉट सेफ। तो सेल के लिए भी इतना सारा ग्लूकोज इन सॉलेबल फॉर्म में रखना इट्स नॉट सेफ। ठीक है, क्योंकि फिर वो वाटर की मूवमेंट होना शुरू हो जाएगी दूसरे सेल से, तो इसीलिए वो बैंक में रख देता है या उनको स्टोरेज फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जो आपकी आपके बुरे वक्त में आपके काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बहुत देर तक खाना नहीं खाया, तो वो जो आपकी स्टोरेज वाला ग्लाइकोजन है, वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में और सेल उसको इस्तेमाल कर लेंगे रेस्पिरेशन के लिए। सेम फॉर द प्लांट्स। अगर रात का वक्त है और प्लांट को रेस्पिरेशन करनी है और नया ग्लूकोज नहीं बन रहा बिकॉज देयर इज नो सनलाइट, देन दैट stored starch first it will be converted into glucose and then it will be used। तो स्टोरेज फॉर्म में रखना ज़रूरी होता है। आई होप आई वुड हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। Yusra, is it okay? आपको आपको समझ में आया what you wanted to ask and what I have replied? ठीक है, तो अब डायग्नोस्टिक टेस्ट हमें करने थे, और वो डायग्नोस्टिक टेस्ट हमारे जो टेस्ट हैं, लैब टेस्ट हैं हमारे, वो हैं हमारे दो फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। एटलीस्ट हम आज की क्लास में कार्बोहाइड्रेट्स के वो कर लें। अच्छा, मैं आप लोगों को एक खुशखबरी भी दे दूं कि मैं एक असेसमेंट रखने वाली हूँ इन कमिंग वीक ऑफ द फर्स्ट 3 चैप्टर्स। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ऑन थर्सडे। ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगी उनको, और जिस तरीके से भी उनको अटेम्प्ट करना होगा वो आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, एंड एवरी वन हैज़ टू अटेम्प्ट देन, ताकि मुझे पता चले कि फर्स्ट 3 चैप्टर्स आप लोगों को समझ में आए हैं कि नहीं आए हैं। ठीक है, डायग्नोस्टिक सेट फॉर कार्बोहाइड्रेट, द फर्स्ट इज स्टार्च टेस्ट। किसी भी चीज़ में स्टार्च मौजूद है या नहीं है, उसके लिए हम क्या टेस्ट करते हैं। ठीक है, और सेकंड टेस्ट है रिड्यूसिंग शुगर टेस्ट। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर टेस्ट। अच्छा, पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कि रिड्यूसिंग शुगर्स होती कौन सी हैं। रिड्यूसिंग शुगर्स आर ऑल simple sugars, that is mono and disaccharide sugars, except जितनी भी मोनोसेकेराइड और डायसेकेराइड शुगर्स हैं, मोस्टली जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस की हैं, ये सारी की सारी रिड्यूसिंग शुगर हैं सिवाय एक के, और वो है सक्रोज। सक्रोज इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, याद रखना है कि अगर किसी सोल्यूशन के अंदर सक्रोज है और उसमें आप रिड्यूसिंग शुगर का टेस्ट करते हैं, तो वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि सक्रोज रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। अब आप कहेंगे कि रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है। रिड्यूसिंग शुगर हम इनको इसलिए कह रहे होते हैं कि ये जो है वो ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, ये रिड्यूस कर रहे होते हैं दूसरे सब्सटेंसेस को, क्योंकि जो हमारा हम इसके अंदर एक जो रिएजेंट डालते हैं, ये उसको रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। आपको इसकी इतनी ज़्यादा केमिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ शुगर्स हैं जो कि रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं, रिड्यूस करती हैं, और इसके अलावा ये उनमें सक्रोज नहीं है, बाकी सारी हैं, माल्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, सॉरी नॉट सक्रोज, ग्लूकोज, जो मैंने ऊपर ये बताई थी ना आपकी, इफ़ यू कैन सी दैम, ये वाला मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। इसमें जो मैंने आपकी एग्जांपल्स बताई हुई हैं, ठीक है, ये वाली, इनको आपको याद होनी चाहिए इनकी एग्जांपल्स। ठीक है, तो इसमें सिवाय सक्रोज के ये जो दोनों हैं, दिस एंड दिस, ये दोनों रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। पॉलीसेक्राइड्स रिड्यूसिंग शुगर्स नहीं होते। तो अगर आप स्टार्च के अंदर रिड्यूसिंग शुगर का टेस्ट करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि पॉलीसेक्राइड्स आर नेवर रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, अब मैं आपको टेस्ट बताती हूँ कि कौन कौन से टेस्ट है, उसका प्रोटोकॉल क्या है, और आपको ये प्रोटोकॉल आना चाहिए पूरा सही से। जब कभी भी आपको स्टार्च टेस्ट लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे। स्टार्च टेस्ट में हमारे पास जो टेस्ट रिएजेंट होता है, ठीक है, इट इज़ आयोडीन सोल्यूशन। आयोडीन सोल्यूशन होता है जिसका कलर जो होता है वो येलोइश ब्राउन होता है। अपना कलर जो आयोडीन सोल्यूशन का होता है वो येलोइश ब्राउन होता है। व्हाट वी डू दैट वी ऐड few drops of iodine solution in
सैंपल, ठीक है. इफ द येलो ब्राउन color of iodine changes to blue black, it means starch present. ठीक है. अगर अगर आपका ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है, आपने थोड़े से ड्रॉप्स डाले आयोडीन सोल्यूशन के, ठीक है, और वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब ये है कि स्टार्च प्रेजेंट है. ठीक है. और अगर आपने आयोडीन सोल्यूशन डाला और कलर चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब है स्टार्च एब्सेंट. इफ नो कलर चेंज, ठीक है, इट मीन्स नो स्टार्च. स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, स्टार्च एब्सेंट है. ठीक है, स्टार्च प्रेजेंट नहीं है. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. इसके अंदर किसका क्या, इसके अंदर ड्रॉप्स डालते हैं. फिर हम बात करते हैं कैन द टेस्ट बी ऑन वीकेंड, एक्चुअली सम टाइमिंग इश्यूज ऑन थर्सडे. हाँ, प्लीज़ अपनी सारी प्रॉब्लम्स मुझे पर्सनल मैसेज में भेजिएगा, हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे क्लास के दौरान, सिर्फ क्लास से रेलेवेंट क्वेश्चन. ओके, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट है आपका रिड्यूसिंग शुगर का टेस्ट. अब रिड्यूसिंग शुगर के टेस्ट का प्रोटोकॉल क्या है? ये वो वाहिद टेस्ट है तमाम टेस्ट में जिसके अंदर हम हीटिंग करते हैं. इसका प्रोटोकॉल आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए. हम क्या लेते हैं? टेक इक्वल. अच्छा, इसका मैंने आपको वो तो बताया नहीं कि व्हाट इज़ द टेस्ट रिएजेंट. इसका जो टेस्ट रिएजेंट है वो होता है बेनेडिक्ट सोल्यूशन. ठीक है, इसको बेनेडिक्ट टेस्ट भी कहते हैं, राइट. और इसका जो रिएजेंट है वो है बेनेडिक्ट सोल्यूशन, राइट. और जो कि खुद जो होता है वो ब्लू इन कलर होता है. इसका अपना कलर ब्लू कलर का होता है बिकॉज इसमें कॉपर सल्फेट मौजूद होता है, राइट. थोड़ा सा टाइम रह गया, मैं चाह रही हूँ ये टेस्ट कंप्लीट हो जाए. अच्छा, इस टेस्ट के अंदर हम करते क्या हैं कि वी टेक इक्वल वॉल्यूम ऑफ बोथ रिएजेंट एंड सैंपल. अच्छा, अगर आपका कोई सैंपल जो है फॉर एग्जांपल सॉलिड फॉर्म में, लेट्स से कि अगर मैंने एप्पल लिया और मैं चाह रही हूँ कि मैं रिड्यूसिंग शुगर का टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट उस पर करूँ, तो मैं करूँगी क्या कि मैं एक मॉर्टर एंड पेस्टल जो होता है उसके अंदर थोड़े एप्पल के पीसेस डालूंगी, उसके अंदर थोड़ा डिस्टिल वाटर डालूंगी और उसको क्रश करूँगी. तो जब मैं एप्पल को वाटर के साथ क्रश करूँगी, सही है, तो उससे क्या हुआ कि एप्पल के अंदर जो भी शुगर्स होंगी वो उस वाटर में चली जाएंगी, देन मैं वो सिर्फ वाटर ले लूँगी. ठीक है. हम ये नहीं करते कि डायरेक्ट कोई भी सॉलिड सैंपल लें और उसको मिक्स कर दें हम अपने बेनेडिक्ट सोल्यूशन के साथ. वी हैव टू टेक लिक्विड फॉर्म ऑफ द सैंपल. और किसी भी सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए हम यही कर सकते हैं कि हम उसमें थोड़ा सा पानी डालें और उसको अच्छे से क्रश करें, और इसके बाद वो हम लिक्विड ले लें और उसको फिर हम उसके अंदर बेनेडिक्ट सोल्यूशन डालें. तो वी हैव टू टेक इक्वल वॉल्यूम ऑफ बोथ रिएजेंट एंड सैंपल, देन हीट. फिर हमने उसको हीट करना है. हीट द टेस्टिंग सैंपल इन ए वाटर बाथ. अब वाटर बाथ क्या हो हमारा? जिसका टेम्परेचर जो हो वो हो. अच्छा, वाटर बाथ आप लोगों को पता है कि वाटर बाथ किसे कहते हैं? बॉइलिंग वाटर बाथ. यस, एनीवन, कोई मुझे बताएगा कि वाटर बाथ किसे कहते हैं? मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ जल्दी से. जैसे कि ये एक बीकर है, ये आपका ट्राइपॉड स्टैंड है, ठीक है, और यहाँ पे है आपका बंसन बर्नर. और वो बंसन बर्नर का जो है वो यहाँ पे है आपकी फ्लेम. ठीक है. ओ, ये क्या हो गया? ठीक है, ये फ्लेम है. इस वाटर बाथ के अंदर हमने रखा है वाटर. ठीक है, ये हम पानी रखते हैं और इसको पूरा गर्म कर लेते हैं. हमारी जो टेस्ट ट्यूब थी ना, ये हमारी टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर हमने इक्वल अमाउंट ऑफ सैंपल डाला. ठीक है, सैंपल हमारा किस कलर का था? सैंपल हमारा डार्क ब्लू कलर, सॉरी, ये हमारा बेनेडिक्ट सोल्यूशन है. ठीक है, और सैंपल हमने इसके ऊपर डाल दिया. फॉर एग्जांपल कोई जूस था, हमने उसको डाल दिया. ठीक है, इन दोनों को हमने मिक्स किया. इसके बाद हम ये जो टेस्ट ट्यूब है, दिस टेस्ट ट्यूब, इसको हम, एक मिनट,
इसको हम ले जाएंगे इस टेस्ट ट्यूब को इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद इसको हम यहाँ पे हीट करेंगे, राइट। इस टेस्ट ट्यूब को हमने डायरेक्ट हीट नहीं करना है, डायरेक्ट फ्लेम पे हीट नहीं कर रहे, बल्कि एक गर्म पानी को, जो हमने ऑलरेडी गर्म पानी था, बॉइलिंग वाटर बैथ था, उसके अंदर रख के हम इस सैंपल को, इस मिक्सचर को हीट अप करेंगे, ठीक है। हम डायरेक्ट इसको इसलिए हीट नहीं करते क्योंकि बेनेडिक्ट सोल्यूशन जो होता है वो एकदम से फ्लश आउट होता है, एकदम से फ्लश आउट होता है टेस्ट ट्यूब से, विच इज़ वेरी डेंजरस, ठीक है। तो यू इस वाले टेस्ट के लिए जो सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं कि आप गॉगल्स पहने, सेफ्टी गॉगल्स पहने, लैब कोट पहने, आपके पास जो टेस्ट ट्यूब होती है, क्योंकि आप गर्म वाटर बैथ में रख रहे हैं, तो टेस्ट ट्यूब को आप टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ें, हाथ से ना पकड़ें, वरना आपका आपका हैंड जो होगा वो बर्न हो सकता है। तो टेस्ट ट्यूब होल्डर होना चाहिए, ठीक है। व्हाट प्रिकॉशंस वी विल टेक व्हाइल डूइंग टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग शुगर। अच्छा, मैंने आपका क्वेश्चन बाद में देखा है और पहले आपको बता दिया कि यस, दीज आर द प्रिकॉशंस। एक तो ये कि आप सेफ्टी गोगल्स पहने ताकि अल्लाह ना करे अगर कोई फ्लैश आउट हो तो आपकी आंखों में ना आए, लैब कोट्स पहने, ग्लव्स पहने, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नेवर एवर डायरेक्टली हीट द सैम्पल। ये जो आपकी ट्यूब है इसको डायरेक्टली आप फ्लेम पे हीट ना करें, बल्कि इसको वाटर बाथ में हीट करें ताकि इसको जेंटल हीट लगे, ठीक है। डायरेक्ट हीट करेंगे तो बेनेडिक्ट सोल्यूशन जो होता है वो एकदम से फ्लैश आउट होता है, ठीक है, वो स्पेल हो सकता है। और तीसरा ये कि आप अपनी टेस्ट ट्यूब को हमेशा एक टेस्ट ट्यूब होल्डर से आप इसको पकड़ें, हाथ से डायरेक्ट ना पकड़ें, ठीक है। टेस्ट ट्यूब होल्डर्स होते हैं आपकी लैब में, उससे पकड़ें, राइट। अब इसको मैं कंटिन्यू कर देती हूँ कि आपने इसको बॉइलिंग वाटर बाथ में रखा एंड हीट फॉर 1 मिनट। 1 मिनट आप इसको हीट करेंगे। ड्यूरिंग द बर्नर विल बी ऑफ एंड वाटर इज हीटेड। जस्ट जब हमारा वाटर बॉईल होना शुरू हो जाएगा ना, हम बर्नर ऑफ करके फिर टेस्ट ट्यूब उसके अंदर रखेंगे, ठीक है। बर्नर हम ऑफ कर देंगे ड्यूरिंग हीटिंग। यहाँ पे जला हुआ था, ठीक है, मैं इसको अगर इरेज कर दूँ। सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने अपना जो वाटर बाथ है वो प्रिपेयर करना है कि एक तरफ बीकर में पानी भर के उसको गर्म किया, राइट। उसको इतना कर लिया कि वो बबल अप बॉयल होना शुरू हो जाए, वहां से आपने हीट ऑफ कर दी, हीट रिमूव कर दी। इसके बाद आपका पानी अच्छा खासा गर्म हो चुका है, फिर आप टेस्ट ट्यूब को इसके अंदर रखेंगे, ठीक है। नीचे से आपका बर्नर ऑन नहीं होना चाहिए, या तो जब भी हम एथेनॉल वगैरह यूज करें या ये वाला टेस्ट करें, उस वक्त हमारी हीट ऑन ना हो, हमारा वाटर ऑलरेडी बॉइलिंग पॉइंट में मौजूद है, तो वी डू नॉट नीड फर्दर हीट, ठीक है। अब हम इसको करेंगे तो इसके बाद हमने क्या करना है, आफ्टर that we have to observe color changes, color change of solution, ठीक है। अब हमारा सोल्यूशन पहले ब्लू कलर का था, क्योंकि बहुत ब्राइट ब्लू कलर होता है बेनेडिक्ट सोल्यूशन का, बिकॉज ऑफ द कॉपर सल्फेट। अच्छा, क्लास किसी भी वक्त एंड होने वाली है, उसको जल्दी से रैप अप कर दूं, बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, क्लास एंड हो जाएगी, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आई विल बी कंटिन्यूइंग रिकॉर्डिंग द वीडियो। मैं इसको पूरा ख़त्म कर दूंगी, फिर जब मैं शेयर करूंगी तो आप आखिर का देख सकते हैं कि मैंने क्या कहा, बिकॉज आई वॉन्ट टू कम्प्लीट दिस लेक्चर ना, ठीक है। वी हैव टू ऑब्जर्व व्हाट इज द कलर चेंज ऑफ द सोल्यूशन। If the sample if the testing sample if the testing sample color remains blue, इसका मतलब है नो रिड्यूसिंग शुगर, यानी ये टेस्ट हमारा क्या है, नेगेटिव है। अगर हमारे टेस्टिंग सैंपल का कलर ब्लू ही रहता है हीट करने के बाद, इसका मतलब है देयर इज नो रिड्यूसिंग शुगर। बट इफ द कलर changes from blue to green, yellow, or orange, or brick red, it means that reducing sugar is present। इसका मतलब ये है कि reducing sugar मौजूद है हमारे पास। ये 3-4 कलर आ सकते हैं, ग्रीन भी आ सकता है, येलो भी आ सकता है, ऑरेंज भी आ सकता है और ब्रिक रेड भी आ सकता है। अब आप कहेंगे मिस इतने सारे कलर्स क्यों आ रहे हैं? द रीज़न बिहाइंड इज दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिड्यूसिंग शुगर। अगर रिड्यूसिंग शुगर बहुत कम है हमारे सैंपल में तो ग्रीन कलर आएगा, अगर उससे थोड़ी सी ज़्यादा है तो येलो आ सकता है, उससे ज़्यादा है तो ऑरेंज आ सकता है, और अगर बहुत सारी रिड्यूसिंग शुगर है तो देन फिर हमारा ब्रिक रेड आएगा। अच्छा, क्लास इज एंडेड, बट आई एम कंटिन्यूइंग दिस लेक्चर एज इट्स बीइंग रिकॉर्डेड, ताकि आपको ये वाली बात पता चल जाए कि ये जो कलर्स होते हैं ना, बेसिकली दैट शो कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन हमारी है हमारे सैंपल के अंदर, राइट। तो कलर ऑफ
टेस्टिंग सैंपल आफ्टर हीटिंग, और इसके बाद अगर मैं इसको कहूँ, ठीक है, एंड देन, ठीक है, सेकंड है आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, जितना इंटेंस कलर होगा इसका मतलब है उतनी ही ज़्यादा रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। ठीक है, सो द कलर ऑफ टेस्टिंग सैंपल इफ इट इज़ ब्लू मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर क्या है, रिड्यूसिंग शुगर जो है वो इट इज़ ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो है। नेक्स्ट है, अगर हमारा कलर है लेट्स से ग्रीन, इट मीन्स दैट हमारी जो रिड्यूसिंग शुगर की कॉन्सेंट्रेशन है वो है वेरी लो। ठीक है, अगर हमारी रिड्यूसिंग शुगर का कलर आ रहा, अगर हमारा टेस्ट का कलर आ रहा है येलो, इट मीन्स दैट मॉडरेट। ठीक है, मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन है। अगर हमारे पास आ रहा है ऑरेंज और ब्रिक रेड, इट मीन्स दैट हाई concentration of reducing sugar present। एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये जो बेनेडिक्ट टेस्ट है, ये जो हम कर रहे हैं लैब में, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस आप कह सकते हैं। एक इसमें पता चल रहा है कोई चीज़ मौजूद है या नहीं है, कितनी मौजूद है, वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। फिर उसके अंदर क्वांटिटी आपकी की जाती है यहाँ, लेकिन हम कलर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा लाइट कलर है, मतलब देर इफ देर इज़ अ लाइट इंटेंसिटी ऑफ द कलर इट मीन्स दैट लो कंसंट्रेशन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, और अगर आपकी डार्क है तो इसका मतलब है कि आपकी हाई कंसंट्रेशन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, टेस्ट का प्रोटोकॉल आपको याद होना चाहिए कि आपको टेस्ट के अंदर टेक इक्वल वॉल्यूम ऑफ बोथ रिएजेंट एंड सैंपल, इसके जो मार्किंग पॉइंट्स हैं ना वो आपको याद होने चाहिए। एक तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ बोथ रिएजेंट एंड सैंपल इज वन वन ऑफ द मार्किंग पॉइंट। ठीक है, दूसरा हीट द टेस्टिंग सैंपल, जो कि जिसमें रिएजेंट आपने मिक्स किया हुआ है उसका हीटिंग, और फिर उसका कलर चेंज ऑब्जर्व करना। ठीक है, ये आपके 3 मार्किंग पॉइंट्स हैं जो कि जभी भी आप बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को लिखेंगे तो आप ये बताएंगे कि क्या है। आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पता होने चाहिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव कलर्स जो हैं वो क्या ऑब्जर्वेशन कलर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आई एम एंडिंग अप माई क्लास विथ दिस। ठीक है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स को और लिपिड्स को। ठीक है, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।